اب اللہ کے دی پورٹل نے حضرت ذوالقرنین کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں یاجوج ماجوج ان پورٹلز کے ذریعے زمین پر پہنچتے تھے، جہاں ملی ایک قوم جو بات کرنے میں مشکل سے کام لیتی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے آتے ہیں، آپ بنائیں ہمارے اور ان کے درمیان میں ماجوج تھے جو آدم علیہ السلام سے پہلے کے آدم کی اولاد، کہ ہم سے پہلے بھی کئی آدمی قومیں کائنات میں زمین، لوہے اور تانبے جیسی دھاتیں یوز ہوئی تھی جو پورٹل ہی تھے۔ قرآن میں صدین لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہے دو راستے، نہ کہ دو پہاڑ۔ دنیا میں لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی کون سی ایسی دیوار ہو سکتی ہے کہ جس کے چاٹنے سے وہ کمزور ہو؟ سورہ کہف قرآن کی ایک انتہائی دلچسپ سورہ ہے جس میں واقعات گہرے اور معنی خیز پیغامات اور سائنٹیفک ٹائم ٹریولنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دور حاضر میں ٹائم ٹریولنگ سائنس کا بھی بہت اہم زیر بحث ٹاپک ہے جسے 20ویں صدی کے مشہور سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹائن ورم ہول روزن برج کا نام دیتے۔ سورہ کہف ان موضوعات کو واضح کرتی ہے بلکہ قرب قیامت ہونے والے واقعات سے بچنے کا حل بھی پیش کر رہی ہے۔ جیسے اس سورہ کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنے کی فضیلت میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ روایات میں فتنہ دجال شروع ہونے پر لوگوں کو پہاڑوں کی طرف جانے کا حکم آتا ہے۔ ان 10 آیات کے مطابق اصحاب کہف نے اس وقت کے فتنے سے بچتے ہوئے پہاڑوں کا رخ کیا تھا اور غار میں پناہ لی تھی، جس کے بعد انہیں غیب سے مدد مل گئی تھی، اور دنیا کے تمام مذاہب میں پہاڑوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ٹائم ٹریولنگ سے ریلیٹڈ واقعات کے بعد حضرت ذوالقرنین کے آسمانوں کے سفر کی شروعات ہوتی ہے، اور بعض تفاسیر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین چچا زاد بھائی بتائے جاتے ہیں، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قدرت عطا کی اور ہر چیز میں سے آسمان میں جانے کا ذریعہ عطا کیا۔ اس نے ایک راستے سبابہ کا اتباع کیا۔ لفظ سبابہ عام طور پر راستہ کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ عربی لغات کی جامعہ کتاب تاج العروض کے مطابق سبابہ کا اصل مطلب وہ رسی ہے جس سے درخت کی اونچائی پر چڑھا جاتا ہے۔ جید تابعی عالم دین زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سبابہ کا مطلب آسمان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، جن میں 4 مقامات پر اس کا مطلب آسمان تک پہنچنے کا ذریعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ سواد، سورہ غافر، سورہ الحج۔ قرآن کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر آسمانوں کی جانب تھا۔ اس آیت پر غور کریں، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اتباع جس کا مطلب ہے تابع ہونا، سببہ وہ راستہ جو آسمان کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے ورم ہول، وہ راستہ جو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور مسافر اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ کچھ روایات میں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے، جیسے جید عالم دین تابعی کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے گھوڑے کو ستارے پر باندھا تھا، اور مراکش کے عظیم عالم دین احمد ابن عجیبہ اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے آلات کو لے جاتے تھے۔ ورم ہول جب زمین کے سرفیس میں اوپن ہوگا تو زمین کے ایٹماسفیئر ہٹے دکھائی دیں گے جو بادل کے گول رنگ کی طرح نظر آئیں گے، یعنی رب العالمین نے حضرت ذوالقرنین کے لیے پورٹلز کھول دیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے مغرب کی جگہ پر پہنچا تو اسے عین حمیہ یعنی سیاہ مٹی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ شمس لفظ جو کسی بھی ستارے کے حوالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ستارے کا مغرب۔ یہ یاد رہے، مشرقین اور مغربین صرف ہماری زمین پر ہی نہیں، پوری کائنات پر لاگو ہونے والے وقتوں اور سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تمام سورجوں کے کشاؤں اور ان گنت گلیکسیز کے تمام مشارق و مغارب شروع اور اختتام کہلاتے ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، تمام مشرقوں اور مغربوں کا رب۔ اور سورج زمین پر غروب نہیں ہوتا، بلکہ یہ زمین کی گردش کے دوران مختلف زاویوں سے ہمیں نظر آتا ہے، جسے سورہ یاسین ظاہر کرتی ہے، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے مقام کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ غالب اور جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اس آیت کے مطابق سورج اپنے ٹھہرنے کے مقام عین حمیہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے سورہ کہف نے مقام کہا ہے۔ اسے سائنٹیفک ٹرم میں سولر ایپیکس کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین اپنے سفر میں ایک خاص مقام پر پہنچے تو انہوں نے سورج کو عین حمیہ میں غروب ہوتے دیکھا۔ عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اور حمیہ کالی مٹی، آنکھ جیسے دکھنے والا کالا سوراخ جو ستاروں کو ان کی روشنی سمیت اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں ایک عظیم بلیک ہول موجود ہے جسے سیجیٹیریس اے کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین اسی مقام کے قریب پہنچے تھے، اور
उसके पास एक कौम को पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तो इनको सजा दो या इनके साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करो। दोनों बातों की तुमको कुदरत है। आयत के दूसरे हिस्से में लफ्ज सजा एक दिलचस्प नुक्ता है कि अल्लाह ताला हजरत जुल्करनैन को उस कौम को सजा देने की इजाजत क्यों दे रहे हैं। इसका मुमकिन जवाब ये है कि वो बहुत जालिम और बेरहम कौम माजूज थी, जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले के आदम की औलाद में से थे, जिसकी वजाहत सूरह बकरा की इस आयत से होती है। रब ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, क्या उसमें ऐसे को मुकर्रर करते हो जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा। इस आयत में लफ्ज खलीफा आता है। खलीफा का मतलब नुमाइंदगी होता है, जानवरों की नुमाइंदगी नहीं, क्योंकि जानवर कौम नहीं होते। जिन्नात भी नहीं, क्योंकि आयत में खून का जिक्र है और जिन्नात आग से बने हैं जिनमें खून नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमसे पहले भी कई आदमी कौमें कायनात में जमीन में वजूद रखती थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले के आदमियों का खलीफा और दीगर मखलूकात पर अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा गया था। माजूज कौम पूरे यूनिवर्स में फसाद मचाते थे। माजूज कौम भागकर ब्लैक होल तक जा पहुँचे थे। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने यह मामला अपने खास बंदे हजरत जुल्करनैन पर छोड़ा, क्योंकि वो खलीफा थे। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उन्हें तंबीह की कि जो शख्स जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो भी इसे सख्त अजाब देगा। अब हजरत जुल्करनैन को इनके रास्तों यानी पोर्टल्स का इल्म हो चुका था कि किन रास्तों के जरिए सफर करते हुए ये जमीन पर पहुंच जाते हैं। अब अगले सफर याजूज कौम की तरफ बढ़े कि वो कौम कहाँ छुपी हुई है। फिर वो ताबे हुआ आसमान के सफर के, यहाँ तक कि जब वो शम्स के शुरू होने की जगह पर पहुंचा तो उसने उसे एक ऐसी कौम पर शुरू होता पाया जिनके लिए हमने कोई पर्दा नहीं बनाया था। वहाँ वो कौम थी कौम याजूज, और हमने घेर रखा था जो इनके पास था, इनसे खूब वाकिफ थे। ये आयत बता रही है कि उस सैयारे को अल्लाह का हुक्म नहीं था कि वो खुद से ओजोन लेयर तरतीब दे। कायनात का हर निजाम हुक्म रब्बी के ताबे है। आयत में लफ्ज़ सितरन आता है, इसका मतलब ऐसा पर्दा जो नजर न आता हो। ऐसे ही पर्दे का जिक्र सूरह बकरा में भी मिलता है। इनके सैयारे के ऊपर ओजोन लेयर नहीं थी, और ओजोन ऐसा पर्दा है जिसके पार हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, मगर वो पर्दा हमें नजर नहीं आता। सूरज से खारिज होने वाली हार्मफुल रेस, जहरीली शुआओं में भी वो सरवाइव कर रहे थे। वो सैयारा बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद हो सकता है, जहाँ दो सितारे मुसलसल रोशनी फराहम करते हो, और यूनिवर्स में 85% बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद है, जहाँ दो सितारे एक दूसरे के गिर्द गर्दिश करते हैं। हजरत जुल्करनैन ऐसे ही स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में पहुंचे थे, जहाँ नए सितारे बन रहे होते हैं। यकीनन हजरत जुल्करनैन उनके ताक़ुब में वहाँ पहुंचे थे जो थी याजूज कौम। वो कौम पोर्टल्स के जरिए मुख्तलिफ सैयारों पर पहुंचकर फसाद मचाती थी, और इस बार ऐसे सैयारे पर मौजूद थी जहां ओजोन लेयर नहीं बनाई गई थी। इनका जमीन पर आना और दोबारा वापस चले जाना, ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो कौम जमीन जैसे माहौल की आदी नहीं थी, जबकि जमीन के लोगों पर उनकी दहशत भी थी, फिर भी वो आकर वापस भाग जाते थे। याजूज माजूज के दोनों रास्तों को कंफर्म करने के बाद हजरत जुल्करनैन ने जमीन के लिए वापसी की। 2 सफरों के बाद हजरत जुल्करनैन उन दोनों पोर्टल्स के रास्तों और दोनों कौमों से वाकिफ हो चुके थे कि ये पोर्टल जमीन पर कहाँ खुलते हैं और कहाँ बंद करने हैं। अब अल्लाह के दिए पोर्टल ने हजरत जुल्करनैन को उस जगह पहुंचा दिया जहां याजूज माजूज इन पोर्टल्स के जरिए जमीन पर पहुंचते थे, जहां मिली एक कौम जो बात करने में मुश्किल से काम लेती थी। ये मुमकिन है कि वो हजरत जुल्करनैन को तन्हा पाकर इस बात को समझने से कासिर हों कि ये तने तन्हा कैसे इतना बड़ा काम अंजाम देंगे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करने आते हैं जमीन पर, तो क्या हम बनाए आपके लिए इखराज, ऊपर पहुंचने के लिए रास्ता, ताकि आप बनाए हमारे और इनके दरमियान यानी रुकावटें। इस आयत में लफ्ज खराजन जो जमा है खर्च की, जो अरबी में माल या खरूज, बाहर एग्जिट निकलने के मायने में भी इस्तेमाल होता है। जुल्करनैन ने कहा, जो ताकत मेरे रब ने मुझे अता की है वही बेहतर है, बस तुम मुझे अपनी मेन पावर से हेल्प करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। जिस ताकत का जिक्र हजरत जुल्करनैन ने किया, इसी ताकत का जिक्र कुरान की सूरह रहमान में भी मिलता है। ए गिरोह जिनो इंस, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल सको तो निकल जाओ, मगर तुम ताकत के सिवा नहीं निकल सकोगे। इसी ताकत से रब्बुल आलमीन ने नवाजा था हजरत जुल्करनैन को। अब इन दोनों आयत का दोबारा सही मायनों में तर्जुमा और असल मतलब जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज कौमें जमीन में आकर फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपको ऊपर पोर्टल तक पहुँचने के लिए इखराज का रास्ता यानी एग्जिट बना कर दें, ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बैरियर बना
कर दे दें। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मेरे रब ने जो ताकत और टेक्नोलॉजी मुझे दी है वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा बेहतर है, बस तुम मेरी मेन पावर से हेल्प करो और लोहे की सीलें ले आओ। फिर दोनों पोर्टल्स ओपन होने की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड या गैसेस तैयार की। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पोर्टल जमीन पर ओपन होता है तो जमीन के एटमॉस्फेयर की वजह से बादल नुमा दायरे की शक्ल में दिखता है, इसीलिए इस जगह गारे और पत्थरों का जिक्र नहीं हुआ, ना इस्तेमाल हुआ। लोहे और तांबे जैसी धातें यूज हुई थी जो साबित करती हैं कि वो पोर्टल ही थे, ना के पहाड़। फिर फरमाया के धुएं को जब उसे आग की तरह कर दिया तो कहा मुझे तांबा ला कर दो ताकि मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। तुर्की के मशहूर आलिम दीन सिकंदर तोरे अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक केमियाई अमल था। गर्म लोहा एक जबरदस्त कैटलिस्ट और हेल्पफुल एलिमेंट है जो केमियाई अमल को तेज कर देता है, मगर खुद उस अमल में तब्दील नहीं होता। जब इसे पिघले हुए तांबे के साथ मिलाया जाता है तो इसके रद्द अमल से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और दीगर ऑक्साइड्स गैसें निकलती हैं। ये अमल उस वक्त तेज हो जाता है जब इसमें ऑक्सीजन शामिल की जाए, इसलिए कहा गया धुएं को हवा डालो। इस आयत में फ़ाइल लफ्ज का मतलब उड़ाना भी हो सकता है। ये गैसें बहुत हल्की होने की वजह से फौरन उड़ती हैं। पोर्टल्स के ध्यानों के करीब ये अमल करके पोर्टल्स को बंद कर दिया गया। फिर वो ना इसमें चढ़ सकते थे और ना इसमें छेद कर सकते थे, क्योंकि गैसेस में छेद करना और चढ़ना मुमकिन नहीं। इसके बाद जुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे खोल देगा और मेरे रब का वादा सच्चा हक है। कुरान में सद्दैन लफ्ज आता है जिसका मतलब है दो रास्ते, ना के दो पहाड़ या दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जबकि इस आयत में ना पहाड़ लफ्ज है और ना पहाड़ का जिक्र है। और वो जमीन वाली कौम जिनके पास मेन पावर भी था, लोहे और तांबे को भी समझते थे, इतने कम अकल भी नहीं थे कि वो खुद पहाड़ के दरमियान का रास्ता बंद ना कर सके हों। असल बात यह है कि वो पोर्टल्स जैसे रास्ते बंद कर देने की ताकत से नावाकिफ थे। वो ताकत नहीं थी जो इन्हें आसमानों के किनारों से बाहर ले जाए, जो ताकत रब्बुल आलमीन ने हजरत जुल्करनैन को अता की थी। यहाँ तक के याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से, हर पोर्टल से तेजी से नीचे उतरेंगे और फिर जमीन में फैल जाएंगे। साइंसी टेक्नोलॉजीज भी यूनिवर्स में सर्चिंग में मसरूफ अमल है। शायद कुरान इनकी समझ में आ चुका था मगर वो जाहिर नहीं करते। अब आप खुद गौर करें कि दुनिया में लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी कौन सी ऐसी दीवार हो सकती है कि जिसके चाटने से वो कमजोर होकर टूट जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि वो इतने कमजोर हों कि एक पहाड़ या गार को ना तोड़ सके या फांद ना सके। मान लेते हैं जो कुछ मैंने आपको बताया ये गलत हो तो याजूज माजूज के बारे में तो आपने भी बहुत कुछ सुना होगा कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब वो दुनिया में आएंगे एक दूसरे में घुस जाएंगे। ये एक ऐसी कौम है जो तादाद में इस कदर ज्यादा है कि हमारे रूए जमीन में फैल जाने के बाद भी एक दूसरे में घुस जाएंगी। तो वो कैसे मुमकिन है कि वो इसी जमीन पर किसी जगह एक दीवार के पीछे छुपे हों, जबकि आज इस सदी में जदीद टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की बदौलत हम जमीन के एक एक इंच से वाकिफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक इनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान को तकिया और दूसरे को लिहाफ बना लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक चाइनीज और रशियन याजूज माजूज हैं और कभी यहूदियों में किसी कबीले को याजूज माजूज से तशबीह दी गई है, जबकि याजूज माजूज एक अलग ही मखलूक है जो बहुत बेरहम जालिम कौमें हैं जो सिर्फ फसाद और तबाही मचाने वाले और कयामत के दिन 1000 में से 999 जहन्नुम में होंगे। ये बात सुनकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन परेशान हुए कि हमारा तो कोई चांस ही नहीं जन्नत में जाने का। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 999 याजूज माजूज होंगे। अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने जन्नती हैं हर एक के बदले 999 याजूज माजूज हैं, तो क्या चीनियों और रशियन और दूसरे कबीलों की इतनी तादाद है?